شو كده؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه استشار الناس في إملاص المرأة، فقال المغيرة بن شعبة: شهدت النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيه بغرة عبد أو أمة، فقال: ائتني بمن يشهد معك، فشهد معه محمد بن مسلمة. إملاص المرأة أن تلقي جنينها ميتا. محترم بھائیو اور دوستو، کتاب القصاص کی احادیث ہم پڑھ رہے تھے۔ آج ہم اسی باب کو مکمل کریں گے انشاءاللہ۔ ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اس حدیث کے راوی ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہ استشار الناس فی املاص المرأة، کہ جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے مشورہ کیا فی املاص المرأة، کہ عورت کے پیٹ میں جو بچہ ہو اگر اس کو مار دیا جائے تو اس کا کیا تاوان ہے، اس کے بارے میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا، اور اس کی دو تفسیریں کی گئی ہیں۔ املاص المرأة کی دو تفسیریں ہیں، میری بات توجہ سے سنتے رہیں۔ ایک تفسیر یہ ہے کہ ایک عورت حمل کی حالت میں ہو، اس کے پیٹ میں بچہ ہو، کوئی شخص اس پر ظلم کرے، زیادتی کرے اور اس کے پیٹ میں مارے، اس کے پیٹ پر مارے اور اس کے نتیجے میں پیٹ میں جو بچہ ہو وہ مر جائے۔ ایک یہ تفسیر۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ خود عورت اپنے جرم کو چھپانے کی خاطر اپنے پیٹ میں موجود بچے کو ضائع کر دے، اپنے جرم کو چھپانے کی خاطر، یعنی اس نے بدکاری کی ہو، بدکاری کے نتیجے میں اس کو حمل ٹھہر گیا ہو، اب شرمساری سے بچنے کے لیے، عار اور شرمندگی سے بچنے کے لیے وہ کیا کرے، وہ اپنے بچے کو خود ہی گرا دے۔ تو اس کے بارے میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ کیا صحابہ اکرام سے کہ اس کا کیا حل ہونا چاہیے اگر اس طرح ہو، اگر کوئی بندہ چاہے عورت کا خامند ہو یا کوئی عورت کسی عورت کو مارے اور اس کے پیٹ میں بچہ مر جائے اور وہ مردہ بچہ باہر آئے تو اس کا حل کیا ہے، یا پھر عورت خود اپنے اوپر زیادتی کر کے اپنے بچے کو گرا دے تو اس کا حل کیا ہے۔ اب سنیے، جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ کیا تو مغیرہ بن شعبہ نے کہا: شہدت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر تھا، قضا فیہ بغرۃ عبد او امہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غلام یا ایک لونڈی کا فیصلہ فرمایا، ایک غلام یا ایک لونڈی کا فیصلہ فرمایا۔ معنی کیا ہے؟ معنی یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اس طرح کسی عورت پہ ظلم کرے اور اس کے پیٹ میں موجود بچے کو مار دے اور مردہ بچہ جو ہے وہ برآمد ہو کسی کی زیادتی کے نتیجے میں، تو اس پر لازم ہے کہ وہ ایک غلام کو آزاد کرے یا وہ ایک لونڈی کو آزاد کرے، یہ اس کی دیت ہے۔ پیٹ میں موجود بچے کو مارنے کی دیت کیا ہے؟ ایک غلام یا ایک لونڈی کو آزاد کرنا۔ اور جو دوسری تفسیر ہم نے کی کہ اگر کوئی عورت خود اس طرح کرے تو اس کے لیے کیا ہے؟ اس کے لیے بھی یہی ہے کہ وہ ایک غلام کو آزاد کرے یا وہ ایک لونڈی کو آزاد کرے۔ جب یہ بات مغیرہ بن شعبہ نے بیان کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ فرمایا تھا، تو اب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
اس واقعے کی کنفرمیشن کے لیے فرمایا کہ ائتنی بمن یشہد معک، اے مغیرہ بن شعبہ تم میرے پاس کسی ایسے شخص کو لاؤ جو تمہارے ساتھ گواہی دے کہ واقعتاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فیصلہ فرمایا تھا، کیونکہ یہ ایک اہم معاملہ تھا۔ تو اہم معاملے میں ایک آدمی کی گواہی کو قبول نہیں کیا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے، بلکہ کہا کہ دوسرا آدمی لاؤ جو اس بات کی گواہی دے کہ واقعتاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فیصلہ فرمایا تھا۔ فشہد معہ محمد بن مسلمہ، تو مغیرہ بن شعبہ کے ساتھ محمد بن مسلمہ جو ہیں انہوں نے بھی یہی گواہی دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فیصلہ فرمایا تھا، ایک غلام کو آزاد کرنا یا ایک لونڈی کو آزاد کرنا، اسی کا فیصلہ فرمایا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اب اس حدیث سے کیا مسئلہ ثابت ہوتا ہے؟ ایک تو اس حدیث سے یہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر کوئی عورت خود جان بوجھ کر اس طرح کرے، حالانکہ ایسا کرنا جائز نہیں ہے، لیکن اگر وہ اس طرح کرے جرم کو چھپانے کی خاطر، شرمندگی اور عار سے بچنے کے لیے، اگر وہ اپنے پیٹ میں بچے کو مار دے اور اس کو ضائع کر دے تو اس پر لازم ہے کہ وہ ایک غلام کو آزاد کرے یا ایک لونڈی کو آزاد کرے۔ اگر غلامی کا دور نہ ہو، اگر غلامی کا دور نہ ہو، جس طرح کہ آج کل غلامی کا دور نہیں، تو وہ کیا کرے؟ وہ 5 اونٹ جو ہے وہ لے کر صدقہ کرے، 5 اونٹ لے کر وہ صدقہ کرے، یہ اس کے گناہ کا کفارہ ہے۔ ایک تو یہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے۔ دوسرا یہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر کوئی کسی عورت پہ ظلم اور زیادتی کرتے ہوئے اس کے پیٹ میں موجود بچے کو مار دے تو اس پر کیا ہے؟ اس پر یہ ہے کہ وہ ایک غلام یا ایک لونڈی لے کر کے اس بچی کو دے، اس عورت کو دے، ایک غلام دے اس کو یا ایک لونڈی اس کو دے۔ یہ کس جرم کی پاداش میں؟ اس جرم کی پاداش میں کہ اس نے اس پر زیادتی کی اور اس کے پیٹ میں موجود بچے کو مارا، لہذا اس پر لازم ہے کہ وہ اس کو ایک غلام دے یا ایک لونڈی دے۔ یہ 2 مسئلے ثابت ہوتے ہیں اس حدیث سے۔ اگلی حدیث پڑھتے ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اقتتلت امرأتان، 2 عورتوں میں لڑائی ہو گئی، 2 عورتوں میں لڑائی ہو گئی، من حذیل، جن کا تعلق حذیل قبیلے سے تھا، فرمت احداہما الاخرى بحجر، تو ان میں سے ایک نے دوسری کو پتھر مارا، لڑائی ہوئی، ان میں سے ایک نے دوسری کو پتھر دے مارا، پھر کیا نتیجہ نکلا؟ فقتلتھا، اس نے اس کو مار دیا، پتھر مارا وہ مر گئی۔ نہ صرف وہ ما فی بطنھا، جو اس کے پیٹ میں بچہ تھا وہ بھی مر گیا، وہ حاملہ تھی، جو اس کے پیٹ میں بچہ تھا وہ بھی مر گیا، وہ خود عورت بھی مر گئی۔ اب جب یہ معاملہ پیش آیا تو حذیل قبیلے کے لوگ اختصموا فاختصموا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جھگڑا لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ فرمائیں کہ اس طرح ایک عورت نے دوسری عورت کو پتھر دے مارا ہے اور اس کے نتیجے میں وہ عورت مر گئی ہے اور اس کے پیٹ میں بچہ بھی مر گیا ہے، اب اس کا کیا حل ہے؟ فقضى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فیصلہ فرمایا وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا ان دیت جنینها غرة عبد او ولیدہ، کہ اس کے پیٹ میں جو بچہ تھا اس کو مارنے کی دیت کیا ہے کہ ایک غلام یا ایک لونڈی کو آزاد کیا جائے۔ جس عورت نے مارا ہے اس پر لازم ہے کہ وہ ایک غلام کو آزاد کرے یا ایک لونڈی کو آزاد کرے، کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اس عورت کے پیٹ میں جو بچہ تھا اس کو مارا، اس کی دیت ہے یہ کہ وہ ایک غلام کو آزاد کرے یا ایک لونڈی کو آزاد کرے۔ دوسرا کیا ہے؟ وقضى بدیت المرأة على عاقلتها، جہاں تک وہ اس عورت کا تعلق ہے جس کو اس نے مارا تھا، مقتول عورت جو ہے، اس کی دیت کا فیصلہ فرمایا آپ نے کہ اس کے رشتہ دار مل کر اس کی دیت مقتولہ کے ورثاء کو ادا کریں۔ بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ یعنی یہاں پر 2 قتل ہوئے تھے، ایک تو عورت قتل ہوئی تھی اور دوسرا عورت کے پیٹ میں جو بچہ موجود تھا وہ قتل ہوا تھا۔ پیٹ میں جو بچہ تھا اس کی دیت کیا ہے؟ کیا فیصلہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ایک غلام کو آزاد کرنا یا ایک لونڈی کو آزاد کرنا۔ جہاں تک عورت کا تعلق ہے جس کو اس عورت نے مارا تھا، اس کی دیت کیا ہے؟ اس کی دیت کا فیصلہ آپ نے یہ فرمایا کہ اس کی دیت جو ہے وہ قاتلہ کے جو قاتلہ جو عورت تھی اس کے رشتہ دار مل کر اس کی دیت جو ہے وہ مقتولہ کے ورثاء کو ادا کریں گے۔
ववर्रसहा वलदहा वमन मअहुम, और जो औरत कत्ल हुई थी उसका वारिस बनाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी औलाद को, और उनके साथ जो बाकी जो रिश्तेदार थे उनको वारिस बनाया। यानी माने ये है मकतूला के वरसा, जो कातला के रिश्तेदारों ने जो दियत देनी थी, कातला के रिश्तेदारों ने जो दियत देनी थी वो किसको देनी थी? वो मकतूला के औलाद को और मकतूला के बाकी वरसा को। ये इसका माना है कि ववर्रसहा वलदहा वमन मअहुम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस औरत का वारिस करार दिया उसकी औलाद को भी, और उसकी औलाद के साथ उनके जो बाकी रिश्तेदार उनको भी वारिस करार दिया कि ये कातला के रिश्तेदारों से दियत लेकर ये आपस में उसको बांट लेंगे, उसको तकसीम कर लेंगे। जब ये फैसला फरमाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तो अब एक शख्स उठता है और वो एतराज करता है। वो क्या कहता है? फ़क़ाम हमल इब्न अन्नाबिगा अल-हुज़ली, हुज़ैल कबीले का एक शख्स जो है जिसका नाम हमल बिन नाबिगा था, वो खड़ा हुआ और कहने लगा, या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल, कैफ़ अग़रमु मन ला शरिब वला अकल वला नतक़ वला इस्तहल फ़मिस्लु ज़ालिका युतल, कि मैं उसकी चट्टी कैसे भरूं जिसने ना पिया और ना खाया और ना बोला और ना वो चीखा। यानी वो बच्चा जो इस औरत के पेट में था, अभी ना उसने खाया, ना उसने पिया, ना वो बोला, ना वो पैदा होकर वो चीखा। यानी वो तो पेट में था, वो तो अभी दुनिया में आया ही ना था, उसकी कैसे चट्टी भरूं मैं, उसकी दियत कैसे अदा करूं मैं? फ़मिस्लु ज़ालिका युतल, इस तरह का जो बच्चा है जो भी मां के पेट में है, जो ना जिंदा पैदा हुआ, ना उसने खाया पिया, ना वो बोला, ना वो उसने चीख मारी, तो इस तरह के बच्चे के खून को रायगा कर देना चाहिए, उसकी दियत नहीं होनी चाहिए। जबकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दियत क्या जिक्र की थी कि उसकी जगह पे क्या किया जाए? एक गुलाम आजाद किया जाए, एक लौंडी को आजाद किया जाए। अब इस शख्स ने एतराज ये किया कि मैं इस बच्चे की दियत क्यों अदा करूं मैं, जबकि वो ना पैदा हुआ, ना उसने खाया पिया, ना वो बोला, ना उसने गुफ्तगू की, ना उसने चीख मार के रोया भी नहीं। जब उसने एतराज किया और इन मुरत्तब अल्फाज के साथ उसने एतराज किया, फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, इन्नमा हुवा मिन इख्वानिल कुहान, ये बंदा जो एतराज कर रहा है ना मेरे फैसले पर, ये काहिनों का, नजूमियों का भाई लगता है। क्यों? मिन अजली सजअही अल्लज़ी सजा, उसने जो अल्फाज कहे थे ना कि कैफ़ अग़रमु मन ला शरिब वला अकल वला नतक़ वला इस्तहल फ़मिस्लु ज़ालिका युतल, यानी एक जैसे अल्फाज जब उसने बयान किए, एक वजन पर जब उसने अल्फाज कहे, तो हम वजन अल्फाज कहने की वजह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये ऐसे लगता है कि जैसे ये काहिन का, किसी काहिन का भाई हो, क्योंकि काहिन अमूमन क्या होते हैं, वो इस तरह की गुफ्तगू करते हैं और लोगों को धोखा देने की कोशिश करते हैं। तो ये इस तरह के अल्फाज बयान करके जो गोया के लोगों को धोखा देने की कोशिश कर रहा है, तो आप फरमाया कि इसकी बात पर कोई कान न धरे, बल्कि फैसला वही है जो मैंने फरमा दिया है। वो क्या है कि इस औरत के पेट में जो बच्चा था जिसको इसने मारा है, ये उस औरत ने मारा है, उसकी जगह पे एक गुलाम या एक लोनी को आजाद किया जाए, और औरत की दियत जो है, जिसको मारा गया उसकी दियत जो है वो कातिला औरत के जो रिश्तेदार हैं वो अदा करेंगे मकतूला के वरसा को। ये हदीस और पहली हदीस जो हमने पढ़ी है, इन दोनों हदीसों से ये साबित होता है कि अगर किसी औरत के पेट में मौजूद बच्चे को मार दिया जाए और वो मुर्दा पैदा हो, तो मारने के नतीजे में अगर वो मुर्दा पैदा होता है तो उसकी दियत यह है कि उस औरत को एक गुलाम दिया जाए या फिर उसको एक लौंडी दी जाए। अगली हदीस पढ़ते हैं। अन इमरान बिन हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु अन्न रजुलन अद्दा यद रजुल, इमरान बिन हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि एक आदमी ने दूसरे आदमी के हाथ को काटा, यानी दांतों के साथ उसके हाथ को काटा और उसके हाथ को चबाया। फनज़अ यदहु, जब वो अपने दांतों के साथ उसके हाथ को काट और चबा रहा था तो उसने एक झटका दिया और अपने हाथ को पीछे खींचा। उसके नतीजे में क्या हुआ? फवक़अ सनियताहु, उसके दांत टूट गए। उसके दांत जो चबा रहा था, जो काट रहा था, उसके दांत टूट गए। फ़ख्तसमा इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो ये दोनों झगड़ा लेकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। फ़क़ाला, तो आपने क्या फरमाया? फरमाया यअद्दु अहदुकुम अखाहु कमा यअद्दुल फहल
क्या तुम में से एक शख्स अपने भाई के हाथ को इस तरह काटता है जिस तरह एक सांड किसी जानवर को काटता है? ला दियत लका, तुम्हारे लिए कोई दियत नहीं है। माने यह है कि ज्यादती तुमने की है कि तुम उसका हाथ चबा रहे थे, तुम उसका हाथ काट रहे थे, तो क्या वो तुम्हारे मुंह में अपने हाथ को छोड़े रखता कि तुम अपनी मर्जी से उसके हाथ को खा लेते, उसके हाथ को काट लेते, उसके हाथ को चबा लेते? क्या वो तुम्हारे मुंह में अपने हाथ को छोड़ देता? भाई उसने अपने आप को बचाना था, तो बचाने की खातिर जब उसने झटका दिया, अपना हाथ बाहर खींचा, उसके नतीजे में तुम्हारे दांत टूट गए, तो ज्यादती तुम्हारी थी, गलती तुम्हारी थी, लिहाजा तुम्हें कोई दियत नहीं दी जाएगी। इसकी तरफ से तुम्हें कोई तवान नहीं मिलेगा, कोई दियत नहीं मिलेगी। इससे साबित होता है कि अगर कोई शख्स किसी पर ज्यादती कर रहा हो, कि कोई शख्स किसी पर ज्यादती कर रहा हो, जुल्म कर रहा हो, और वो शख्स अपने दिफा में उससे अपनी जान छुड़ाने की कोशिश करे, अपने आप को बचाने की खातिर वो कोशिश करे, तो अपने आप को बचाते हुए अगर वो उसको कोई नुकसान पहुंचा बैठता है, उसका कोई नुकसान होता है, तो उस नुकसान का जिम्मेदार ये नहीं होगा जिस पर ज्यादती हो रही। ये तो अपने बचाव की खातिर कर रहा है, जो कुछ कर रहा है, अपनी जान बचाने की खातिर जो कुछ कर रहा है उसको करना ही है। तो जान बचाते हुए और अपने आप का दिफा करते हुए अगर किसी का नुकसान हो जाता है, हत्ता कि अगर ज्यादती करने वाला शख्स अगर मर भी जाता है, तो उसकी कोई दियत इसको नहीं अदा करनी पड़ेगी। अब फर्ज करें एक शख्स किसी पर हमलावर होता है, किसी पर हमलावर होता है, अब जाहिर है कि उसने अपनी जान बचानी है, जान बचाने की खातिर और अपना दिफा करते हुए ये उस पर हमलावर होता है, जवाबी हमला करता है, और उस जवाबी हमले में मारा जाता है। कौन? हमला करने वाला, जो जुल्म कर रहा है, जो ज्यादती कर रहा है, वो मारा जाता है। तो इसका कोई तावान नहीं होगा, इसकी कोई दियत नहीं होगी, और इसका कोई जुर्माना नहीं होगा, इससे कोई पूछगछ नहीं की जाएगी। क्यों? इसलिए कि वो अपने आप को बचा रहा है, वो अपना दिफा कर रहा है। जैसे कि ये शख्स अपना दिफा कर रहा था और उसके दांत टूटे गए, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ला दियत लका, तुम्हारे लिए कोई दियत नहीं है, कोई तावान इसकी तरफ से तुम्हें अदा नहीं जाएगा। अगली हदीस अनिल हसन इब्न अबिल हसन अल-बसरी क़ाल हदथना जुंदुब फी हाज़ल मस्जिद वमा नसीना मिन्हु हदीसन। हजरत अल-हसन बिन अबिल हसन अल-बसरी जो ताबई थे, वो बयान करते हैं कि हमें हदीस बयान की जुंदुब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फी हाज़ल मस्जिद, इस मस्जिद में, यानी कूफा की मस्जिद में, ये कूफा के रहने वाले थे, कूफा में उन्होंने हदीस बयान की। कहते हैं वमा नसीना मिन्हु हदीसन, और जो हदीसें जुंदुब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बयान की थी, हम उनमें से कोई हदीस भी नहीं भूले हैं, हमने सारी हदीसें ज़हन नशीन कर ली हैं, सब हदीसों को हमने अच्छी तरह से याद कर लिया है। वमा नख्शा, और हमें कोई खौफ नहीं है, अन यकून जुंदुबुन कज़ब अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, के जुंदुब ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर झूठ बोला हो और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ कोई हदीस अपनी तरफ से घर के मंसूब करती हो, ऐसा हरगिज नहीं है। यानी जुंदुब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बिल्कुल सच्ची हदीसें बयान की, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची हदीसें बयान की, और जो हदीसें बयान की हमने उनको खूब अच्छी तरह से ज़हन नशीन कर लिया और अच्छी तरह हिफ्ज़ कर लिया। क़ाला, तो जुंदुब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक हदीस ये बयान की कि क़ाल रसूलुल्लाह, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कान फी मन क़ब्लकुम, तुमसे पहले लोगों में एक आदमी था, रजुलुन बिही जुरहुन, जिसको एक जख्म लगा, तुमसे पहले लोगों में से एक आदमी को जख्म लगा, फजज़िअ, तो वो घबरा गया, जख्म को बर्दाश्त न कर सका, जख्म से वो घबरा गया। उसने क्या किया? घबराहट के आलम में अखज़ सिक्कीनन, उसने एक छुरी को उठाया, फहज़्ज़ बिहा यदहु, तो उसने अपने हाथ को काट डाला, छुरी को लिया, छुरी को लेकर के उसने अपने हाथ को ही काट डाला। फमा रक़ा दम, तो खून रुका नहीं, हत्ता माता, यहां तक वो मर गया, यानी उसने खुदकुशी की। उसको जख्म लगा था, अगर वो बर्दाश्त कर लेता तो हो सकता था कि जख्म उसका भर जाता और वो शिफायाब हो जाता, लेकिन उसने सब्र नहीं किया, इस जख्म को उसने बर्दाश्त नहीं किया
और जो कदम उसने उठाया वो खुदकुशी का कदम उठाया उसने, कि छुरी लेकर उसने अपने ही हाथ को काट डाला। फिर खून बहना शुरू हुआ, बहता रहा बहता रहा बहता रहा, यहां तक कि वो मर गया। क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल, जब उस शख्स ने खुदकुशी की, अपने आप को खुद मारा, तो अल्लाह अज़्ज़ व जल ने फरमाया, अब्दी बादरनी बिनफ्सिही, मेरे बंदे ने अपनी जान के बारे में जल्दबाजी से काम लिया है। मेरे बंदे ने अपनी जान के मुतालिक जल्दबाजी से काम लिया है। हर्रमतु अलैहिल जन्नह, मैंने उस पर जन्नत को हराम कर दिया। अब ये जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता। और इसमें आप देखें कि अब्दी के अल्फाज हैं, मेरे बंदे ने, यानी वो मुसलमान था पहली उम्मतों में से, वो पहली उम्मतों में से किसी उम्मत से उसका ताल्लुक था, लेकिन वो मुसलमान था और उस दौर के नबी को मानने वाला था, अल्लाह रब्बुल इज्जत पर ईमान रखने वाला था। लेकिन उसने क्या किया? उसने खुदकुशी का इक़दाम किया। खुदकुशी के इक़दाम के नतीजे में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने मुसलमान बंदे पर जन्नत को हराम कर दिया। इससे, इस हदीस से साबित होता है कि जो शख्स खुदकुशी करता है उस पर जन्नत हराम। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुदकुशी करने वाले के बारे में इरशाद फरमाया कि जो शख्स खुदकुशी करता है, जिस चीज के साथ वो खुदकुशी करता है उसी चीज के साथ उसको क़यामत तक कब्र के अंदर अजाब दिया जाता रहेगा। उसने जहर पी, क़यामत तक जहर पीता रहेगा। उसने अपने आप को शूट किया, क़यामत तक वो अपने आप को शूट करता रहेगा। उसने अपने गले में फंदा डाल करके उसने अपने आप को मार डाला, क़यामत तक वो इसी तरह करता रहेगा, अपने आप को बार बार मारता रहेगा। जिस चीज के साथ भी कोई शख्स खुदकुशी करता है उसी चीज के साथ उसको अजाब दिया जाता है कब्र के अंदर, और यह अजाब बदस्तूर क़यामत तक दिया जाता रहेगा, वल्इयाज़ु बिल्लाह। और हमने पिछले दर्स में यह बयान किया था कि अल्लाह ताला ने फरमाया, ला तक़्तुलू अनफुसकुम, कि अपने आप को मत मारो। इसके माने यह है कि खुदकुशी मत करो, अपनी जान का खात्मा अपने हाथों ना करो। तो अपने आप को मारना, खुदकुशी करना जो है यह बहुत बड़ा गुनाह है, जिसके नतीजे में अल्लाह रब्बुल इज्जत उस बंदे पर जन्नत को हराम कर देते हैं। इसके साथ ही ये किताबुल क़िसास का बाब खत्म हुआ। इस आज जो हमने हदीसें पढ़ी हैं, इन हदीसों के मुतालिक अगर किसी का कोई सवाल हो तो कर सकते हैं, इससे पहले कि हम अगला बाब शुरू करें। इस हदीस में जो मसला बयान किया गया है, जो आज हमने पढ़ी है, वो उस हामला औरत के बारे में है जिसका हमल गैर शरई तरीके से, नाजायज तरीके से ठहरा हो, यानी बदकारी के नतीजे में हमल ठहरा हो। तो वो औरत अपने आप को शर्मिंदगी और आर से बचाने की खातिर वो अपने हमल को ज़ाय करते, तो उसका ये कफारा है, उसकी ये दियत है। बाकी जहां तक उस औरत का ताल्लुक है जो शादीशुदा हो और वो हामला हो, तो उसके लिए कतन जायज नहीं कि वो अपने हमल को ज़ाय करे। हरगिज़ उसके लिए जायज नहीं कि अपने हमल को ज़ाय करे, चाहे उसकी मुद्दत जितनी भी हो। अगरचे बाज़ अहले इल्म का ये कहना है कि अगर हमल की जो मुद्दत है वो अभी 4 महीने मुकम्मल ना हुई हो, तो उससे पहले पहले अगर किसी मजबूरी की खातिर हमल ज़ाय करना पड़े तो औरत हमल ज़ाय करवा सकती है। 4 महीने की हमल की मुद्दत पूरा होने से पहले अगर किसी मजबूरी की खातिर, किसी मजबूरी की बिना पर अगर उसको हमल ज़ाय करना पड़ता है तो हमल ज़ाय करवा सकती है वो। लेकिन जहां तक 4 महीने के बाद का ताल्लुक है तो नहीं। क्यों? इसलिए कि 4 महीने, हमने पहले हदीस पढ़ी थी कि जब 4 महीने मुकम्मल होते हैं तो अल्लाह ताला एक फरिश्तों को भेजता है और वो फरिश्ता आकर के उसके अंदर रूह को फूंकता है, उस बच्चे के अंदर रूह को फूंकता है और उसके मुतालिक 4 चीजें लिखता है। तो रूह का फूंकना जो है ये अल्लाह की तरफ से उस वक्त होता है जब उस बच्चे की मुद्दत, मां के पेट में उम्र जो है वो 4 महीने मुकम्मल होती है। तो उसके बाद जब उसके जिस्म में जान आ जाती है, रूह फूंक दी जाती है, तो अब
उसको मारना ऐसे जैसे किसी जिंदा इंसान को मारना है, तो वो यकीनन बहुत बड़ा गुनाह है। तो अगर तो कोई सख्त मजबूरी हो, मसलन डॉक्टर ये कहे कि ये औरत जो है ये हमल को बर्दाश्त नहीं कर सकती और इसकी जान को खतरा है, तो फिर ठीक है, औरत की जान बचाने की खातिर अगर हमल ज़ाया करना पड़ता है, चाहे 4 महीने से पहले या 4 महीने के बाद, तो कोई हर्ज नहीं है। लेकिन यह है कि जिस तरह बाज़ ख़वातीन खौफज़दा होती हैं या ऐसे ही तवहम परस्ती में मुब्तला होती हैं, तो इस तरह हमल ज़ाया नहीं करना चाहिए और उसकी मुद्दत को पूरा होने देना चाहिए। हाँ जी। जी, खुदकुशी जो है वो किसी भी शक्ल में, खुदकुशी किसी भी शक्ल में जायज़ नहीं है। अगर, जी हाँ, अगर कोई शख्स किसी मरज में मुब्तला है, आपने मरज का कहा, कोई इब्तला आती है, किसी पर कोई आजमाइश आती है, जी हाँ जी, जी जी हाँ, लेकिन वो खुद कोई ऐसा कदम नहीं उठाता अपने आप को मारने के लिए। जी जी हाँ, नहीं, ये तो मुख्तलिफ है, ये एक मुख्तलिफ सूरत हाल है कि अगर एक शख्स किसी आजमाइश से दुचार होता है और वो बेचारा उस आजमाइश को बर्दाश्त नहीं कर पाता और उसके नतीजे में वो किसी मरज में मुब्तला हो जाता है और उसी मरज की वजह से फिर उसकी मौत वाक़ई हो जाती है, तो ये एक मुख्तलिफ सूरत हाल है, इसको खुदकुशी नहीं कह सकते हैं। हाँ जी, हाँ, ये बड़ा अहम मसला है, ये अच्छा सवाल किया। खुदकुशी के मौजू पर मेरी एक किताब है, छोटा सा किताबचा है, तो गालबन 50 सफ़े का किताबचा है, तो उसमें मैंने ये मसला जिक्र किया है कि क्या खुदकुशी करने वाला शख्स जो है वो हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम में रहेगा या उसको जहन्नम से निकाल कर जन्नत में भेज दिया जाएगा उसकी तौहीद की वजह से। तो इसका जवाब यह है कि हाँ, उस शख्स को जहन्नम के अंदर अजाब दिया जाएगा। किसको? जो खुदकुशी करता है, लेकिन वो हमेशा हमेशा के लिए जहन्नमी नहीं होगा अगर वो मुवहिद हो। अगर वो मुवहिद होता है और तौहीद पर उसका खात्मा होता है, वो अपने आप को जब मारता है तो वो तौहीद के अकीदे की हालत में होता है, वो शिर्क करने वाला नहीं होता, कब्र परस्ती करने वाला नहीं होता, कम अज कम शिर्क से उसका दामन पाक होता है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके तो अकीदे तौहीद की बरकत की वजह से उसको उसके गुनाह की सजा देकर उसको जहन्नम से निकाल कर जन्नत में भेज देगा, और इस सिलसिले में बहुत सारी अहादीस मौजूद है। हाँ जी, अगर कोई शख्स बीमार है और वो दवाई लेने के लिए जाता है, डॉक्टर उसको गलती से कोई ऐसी दवाई दे देता है कि जिसके नतीजे में उसकी मौत वाक़ई होती है, गलती से, यही आप कह रहे हैं ना, दानिस्ता तौर पर नहीं। तो यकीनन ये एक इंसानी गलती है, इंसानी गलती के नतीजे में उसकी मौत वाक़ई हुई, तो इसको ये नहीं कह सकते, ना तो ये कह सकते हैं कि उस आदमी ने खुदकुशी की। खुदकुशी तो हरगिज नहीं है, क्योंकि वो तो दवाई लेने के लिए गया था, अपना इलाज कराने के लिए गया था, तो इसको खुदकुशी हरगिज नहीं कह सकते हैं। और ना ही डॉक्टर पर कत्ल का इल्जाम लगाया जा सकता है, क्योंकि उसने तो दवाई दी, अलबत्ता यह है कि उससे गलती वाक़ई होगी और हर इंसान जो है वो गलती का इर्तिकाब करता है, हर इंसान से गलतियां हो जाती हैं, तो उसको कातिल नहीं कहा जा सकता। हाँ जी, अगली हदीस पढ़ते हैं, अगला बाब शुरू करते हैं, किताबुल हुदूद, हुदूद का बयान। यानी इस बाब में
अल्लाह की जो हदूद हैं उनको बयान किया जाएगा। और हदूद से मुराद सजाएं हैं। कुछ जराइम ऐसे हैं कि जिनकी सजाएं अल्लाह ताला ने मुकर्रर कर दी। मसलन जिना की सजा मुकर्रर है, चोरी की सजा मुकर्रर है, शराब नोशी की सजा मुकर्रर है, इसी तरह तोहमत लगाने की सजा मुकर्रर है, बगावत करने की सजा मुकर्रर है, मुर्तद होने की सजा मुकर्रर है। तो ये बात सजाएं जो हैं वो इस बाब के अंदर जिक्र की जाएंगी। पहले हदीस पढ़ते हैं। अन अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु, जनाब अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि क़दिम नासुम मिन उक्लिन औ उरैना, कि कुछ लोग उक्ल कबीले से या उरैना कबीले से आए। फज्तवुल मदीना, कहाँ आए? यानी मदीना मुनव्वरा में आए। फज्तवुल मदीना, तो मदीना मुनव्वरा की आबो हवा उनको मुवाफिक नहीं आई। कुछ लोग जिनका ताल्लुक उक्ल कबीले से था या उरैना कबीले से था, वो मदीना मुनव्वरा में आए। मदीना मुनव्वरा में जब वो ठहरे तो मदीना मुनव्वरा की आबो हवा उनको मुवाफिक नहीं आई और वो बीमार पड़ गए। फ़अमर लहुम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिलिक़ाह, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए हुक्म दिया कि इन लोगों को दूध देने वाली ऊँटनियां दे दी जाएं। दूध देने वाली ऊँटनियां, ऐसी ऊँटनियां जिनका दूध आ रहा हो, वो ऊँटनियां इनको देने का हुक्म दिया। वअमरहुम, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन लोगों को हुक्म दिया अन यशरबू, कि वो पिए, मिन अबवालिहा, उन ऊँटनियों के पेशाब, व अलबानिहा, और उन ऊँटनियों के दूध। ऊँटनियों के पेशाब को पिए और उनके दूध को पिए, इसका हुक्म दिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। फंतलकू, चुनाचे वो ऊँटनियों को लेकर चल पड़े। फलम्मा सहू, जब वो चरागाह में गए या वो जंगल में गए जहां पर वो ऊँटनियों को चराते थे, तो वहां पर उन्होंने ऊँटनियों का दूध पिया, ऊँटनियों का पेशाब भी पिया, तो वो सेहतमंद हो गए। फलम्मा सहू, जब वो सेहतमंद और तंदुरुस्त हो गए, क़तलू राइयन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चरवाहे को मार डाला। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये ऊँटनियां दी थी इन लोगों को कि भाई इन ऊँटनियों को लेके जाओ, इनके दूध भी पियो, पेशाब भी पियो, तो आपने उनके साथ अपने एक चरवाहे को भेज दिया कि वो चरवाहा जो है इन ऊँटनियों का ख्याल रखेगा, इनकी रखवाली करेगा। तो उन्होंने क्या किया, जब सेहतमंद हो गए तो सबसे पहले उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चरवाहे को मार डाला। वस्ताकुन नाम, और ऊँटनियों को हाँक कर ले गए, यानी चुरा कर भगा कर ले गए। फजा अल खबरू, तो ये खबर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई, फी अव्वल नहार, दिन की पहली घड़ी में। जब ये वाक़या पेश आया तो इसकी खबर पहुंच गई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दिन की पहली घड़ी में, पहले पहर में। फबअस फी आसारिहिम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके पीछे लोगों को भेजा कि जाओ उनको पकड़ के लाओ। फलम्मा इर्तफ़अ अन-नहार, जब दिन सूरज बुलंद हो गया, जी अबिहिम, तो उनको लाया गया, यानी उनको गिरफ्तार करके उनको पकड़कर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने उनको पेश कर दिया गया। फ़अमरा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब इनके बारे में क्या फैसला फरमाया? किन के बारे में? जिन लोगों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चरवाहे को मारा था और वो ऊँटनियां भगा कर ले गए थे, आपने इनके बारे में जो फैसला फरमाया, अब वो फैसला सुनिए। आपने फैसला फरमाया कि फ़क़तअ अयदियहुम व अर्जुलहुम, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला फरमाया कि इनके हाथ पांव को उल्टी सिमत से काट दिया जाए। वसुमिरत आयुनुहुम, और उनकी आंखों में गरम हाँ जी क्या कहते हैं उनको, सलाइयां, गरम सलाइयां उनकी आंखों में फेरी जाएं। वतुरिकु फिल हर्रा, और उनको काले पत्थरों वाली जमीन पर छोड़ दिया गया। अब देखिए तीन किस्म की सजाएं हैं। एक ये कि उनके हाथ पांव काटे गए, क्यों? इसलिए कि उन्होंने चोरी की थी। वसुमिरत आयुनुहुम, और उनकी आंखों में गरम सलाइयां डाली गईं, यानी उनको सजा देने के लिए। उनका जुर्म इतना सख्त था, इतना संगीन था कि उनकी आंखों में गरम सलाइयां डाली गई, फेरी गई। और फिर इनको तुरिको फिल हर्रा, फिर इनको गरम पत्थरों वाली जो जमीन थी मदीना मुनव्वरा की, हर्रा एक ऐसी, और आज भी वो जमीन मौजूद है मदीना मुनव्वरा के अंदर, बल्कि मदीना एयरपोर्ट के करीब ही है वो जगह, जो काले पत्थरों वाली जमीन कहलाती है, उसको हर्रा कहा जाता है, काले पत्थरों वाली जमीन। तो काले पत्थरों वाली जमीन पर इनको फेंक दिया गया। यस्तस्कून, ये पानी मांगते थे।
फला युस्कौन, तो इनको पानी नहीं दिया गया। तो ये सजा दी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन लोगों को जिन्होंने इस तरह एक चरवाहे को मारा था और ऊंटनियां चुरा कर ले गए थे, उनकी ये सजा दी गई। उनको ये सजा दी गई कि उनके हाथ पांव काट दिए गए, उनकी आंखों में सिलाइयां फेरी गई और उन्हें काले पत्थरों वाली जमीन पे फेंक दिया गया, जहां पर वो एड़ियां रगड़ते रगड़ते मर गए और उनकी जानें खत्म हो गई। काल अबू किलाबा जो एक हदीस, इस हदीस के रावी हैं, वो बयान करते हैं कि हाउला इसरकू, इन लोगों ने चोरी की थी, वक़तलू, और कत्ल किया था, वकफरू, और ये मुर्तद हो गए थे, बाद ईमानिहिम, अपने ईमान के बाद ये लोग मुर्तद हो गए थे। तो इसलिए वहारबुल्लाह व रसूलहू, और अल्लाह के रसूल के खिलाफ इन्होंने ऐलान जंग किया था। तो इनकी ये जो जराइम थे, चोरी, कत्ल और मुर्तद होना, इन तीन जराइम की पादाश में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको 3 किस्म की सजाएं दी, जो कि अभी हमने जिक्र की हैं। तो इस हदीस से साबित होता है इस हदीस से ये साबित होता है कि डाका जनी करना जो है उसकी यही सजा है। अगर कोई शख्स असलहे के जोर पर अपनी ताकत का मुजाहरा करते हुए दिन दिहाड़े अगर वो किसी को कत्ल करे या वो माल छीन ले, तो उस डाकू की सजा जो है वो यही है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया है, इन्नमा जज़ाउल लज़ीना युहारिबून अल्लाह व रसूलहू व यसअून फिल अर्दि फसादन अन युक़त्तलू औ युसल्लबू औ तुक़त्तअ अयदीहिम व अर्जुलुहुम मिन खिलाफ औ युनफ़ौ मिनल अर्द ज़ालिका लहुम ख़िज़्युन फ़िद दुनिया व लहुम फ़िल आख़िरति अज़ाबुन अज़ीम, कि वो लोग जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के खिलाफ ऐलान जंग करते हैं और जमीन में फसाद फैलाते हैं, ये फसाद की एक शक्ल थी, ये फसाद ही की एक सूरत थी कि उन्होंने चरवाहे को मार डाला, यानी बजाय इसके कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहसानमंद होते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शुक्रगुजार होते कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको ऊंटनियां दी और उनका दूध पीकर, उनका पेशाब पीकर वो शफायाब हो गए, सेहतमंद तंदुरुस्त हो गए। बजाय एहसानमंद होने के उन्होंने उल्टा जुर्म किया और चरवाहे को मार डाला। जिन जानवरों का दूध पी के वो शिफायाब हो गए वो चुरा कर ले भागे, प्लस ये कि उन्होंने अल्लाह और अल्लाह के रसूल के खिलाफ ऐलान जंग किया और वो मुर्तद हो गए। तो अल्लाह ने फरमाया कि ऐसे लोग जो जमीन में फसाद फैलाते हैं उनकी सजा क्या है, अन युक़त्तलू, कि उनको कत्ल कर दिया जाए। डाकुओं की सजा यह है, अगर इस्लामी हुकूमत हो और डाकुओं का जुर्म साबित हो जाए तो उनको कत्ल कर देना चाहिए, औ युसल्लबू, या उनको फांसी पर लटका देना चाहिए, औ तुक़त्तअ अयदीहिम व अर्जुलुहुम, या फिर उनके हाथ पांव उल्टी सिमत से काट देने चाहिए। उल्टी सिमत का मतलब यह है कि मसलन अगर दायां हाथ काटें तो बायां पैर काट दें, और अगर बायां हाथ काटते हैं तो उधर दायां पैर काट दें। इस तरह उल्टी सिमत से हाथ पांव काट दिए जाए। औ युनफ़ौ मिनल अर्द, या फिर उनको जिलावतन कर दिया जाए, वो उस मुल्क के अंदर, इस्लामी ममलकत के अंदर रहने के हकदार नहीं है। अल्लाह ने फरमाया ज़ालिका लहुम ख़िज़्युन फ़िद दुनिया, ये दुनिया के अंदर इनके लिए रुसवाई है, और जहां तक आखिरत का ताल्लुक है वलहुम फिल आखिरति अज़ाबुन अज़ीम, तो इस तरह के जो फसाद फैलाने वाले जो डाकू होते हैं इनके लिए आखिरत में अज़ाब अज़ीम इसके अलावा होगा, बहुत बड़ा अज़ाब होगा उनके लिए। तो ये जो हदीस हमने जिक्र की है इसमें भी इसी तरह के डाकुओं की सजा जिक्र की गई है, और इससे यह भी मसला साबित होता है, इस हदीस से यह मसला भी साबित होता है कि जो हलाल जानवर होते हैं, जिन जानवरों का गोश्त खाना जायज है, हलाल है, उन जानवरों का पेशाब नापाक नहीं होता, उन जानवरों का पेशाब नापाक नहीं होता। वरना अगर ऊंट या ऊंटनी का पेशाब नापाक होता तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी भी इन लोगों को इजाजत ना देते कि वो ऊंटनियों का पेशाब पिए। तो हलाल जानवरों का पेशाब जो है वो नापाक नहीं होता, वो पाक होता है। अगर किसी इस तरह की बीमारी की वजह से, देखें ये बीमार हो गए थे, तो इनको बीमारी से शिफायाब होने के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया कि ऊंटनियों का पेशाब पिए और दूध पिए। तो इस तरह की अगर कोई मजबूरी हो तो हलाल जानवर का पेशाब दवाई में इस्तेमाल किया जा सकता है, उसमें कोई हर्ज नहीं। और आजकल जदीद तिब में तो यह बात साबित हो चुकी है कि कैंसर का जो मर्ज है इसका बेहतरीन इलाज जो है वो ऊंटनी का पेशाब है। और यहां पर कई लोग, कुवैत के अंदर बहुत सारे लोग जो कैंसर के मर्ज में मुब्तला होते हैं, अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे, उनके लिए यहां पर ये जो एक इलाका है इस तरफ जिधर ये बद्दू किस्म के होते हैं लोग, हाँ जी, हाँ, जिसको चबद कहते हैं,
या सलेबिया वगैरह जो ये जो इलाके हैं, बदुओं के इलाके के अंदर ऊंट और ऊँटनियों को पाला जाता है। तो वहां से कई लोग जो हैं वो दूध लेते हैं और वो बाकायदा इलाज करते हैं अपने कैंसर के मरज का, और कई लोग शिफायाब भी हो जाते हैं। अल्लाह ताला ने जिनके लिए शिफा लिखी होती है तो शिफायाब भी हो जाते हैं। तो खुलासा ये है कि हलाल जानवरों का जो पेशाब होता है वो नापाक नहीं होता, उनके पेशाब को दवाई वगैरह के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ जी। जी जी, हाँ सही बात है। आपने सही कहा कि नबी सल्लल्लाहु, इस हदीस से ये बात साबित होती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गैब का इल्म नहीं था। गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है। वरना अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गैब का इल्म होता, आपको अगर ये पता होता कि चंद दिन गुजरने के बाद यही लोग चरवाहे को मार डालेंगे और ये ऊँटियां चुरा के ले जाएंगे, अगर आपको पता होता तो क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको इजाजत देते इस बात की कि वो ऊँटियां लेके जाएं और चरवाहा भी आप साथ भेजते? ऐसा ना होता। अगर आपको इसका पता होता तो इससे मालूम होता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गैब का इल्म नहीं था। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, कुल ला अक़ूलु लकुम इंदी खज़ाइनुल्लाह वला अअलमुल गैब। आप फरमा दीजिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मैं ये नहीं कहता कि मेरे पास अल्लाह के खजाने हैं, और ना ही मैं ये कहता हूं कि मैं गैब जानता हूं। तो अल्लाह के रसूल के पास गैब का इल्म नहीं था, बल्कि अल्लाह ने यह भी इरशाद फरमाया, कुल ला यअलमु मन फिस समावाति वल अर्दिल गैब इल्लल्लाह, कि आसमानों में और जमीन में कोई गैब नहीं जानता है सिवाय अल्लाह ताला के। गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है। हाँ जी, किसी का सवाल हो तो कर सकते हैं, वरना अगली हदीस पढ़ें। अगली हदीस जरा लंबी है, अंदेशा है कि 3-4 मिनट बाकी हैं, शायद वो हदीस ना पढ़ सके। हाँ जी। हाँ, अगर हलाल जानवर का पेशाब कपड़े पर लग जाए या इंसान के जिस्म पर लग जाए तो वो पलीद नहीं होता, वो नापाक नहीं होता, उसको धोना जरूरी नहीं है। हाँ जी। जी नहीं, वो ये है कि अगर किसी औरत का कोई शख्स अगर किसी औरत के पेट में मौजूद बच्चे को मार दे अगर, तो मैंने कहा कि उसका कफारा ये है, उसकी दियत ये है कि उसको एक गुलाम दिया जाए या उसको एक लौंडी दी जाए। लेकिन अगर गुलामों और लौंडियों का दौर ना हो तो फिर क्या किया जाए? फिर 5 ऊंट जो हैं, 5 ऊंट दे दिए जाएं उस औरत को जिसका बच्चा गिराया गया, मारा गया जिसका, उसको 5 ऊंट दे दिए जाएं या 5 ऊंटों की कीमत दे दी जाए। ये उसकी दियत है। ये 5 ऊंट या 5 ऊंटों की कीमत उसको अदा कर दी जाए। किस लिए? इसलिए कि जिसने ज्यादती की, जिसने उस औरत के पेट पे मारा और उसके नतीजे में वो बच्चा मर गया, ये उसकी दियत है, उसका तावान है। हाँ जी, और सवाल? जी कत्ल खता। जी हम्म हाँ, ये बात दुरुस्त है आपकी कि अगर एक्सीडेंट जो है वो गाड़ी वाले की गलती की बिना पर होता है या उसकी कोई गलती नहीं होती है, अगर तो उसकी किसी गलती की बिना पर होता है एक्सीडेंट और उसके नतीजे में एक शख्स मारा जाता है, तो वो कत्ल खता का मुर्तकिब होगा और उसको और उसके जो रिश्तेदार हैं उनको मिलकर उसकी दियत अदा करनी पड़ेगी, उसका तावान अदा करना पड़ेगा। लेकिन अगर उसकी कोई गलती नहीं
اور کوئی شخص اپنی غلطی سے اس کی زد میں آ جاتا ہے، اپنی غلطی کی وجہ سے وہ اس کار کی یا اس گاڑی کی زد میں آ جاتا ہے، تو کیا پھر بھی اس کار کا یا گاڑی کا جو ڈرائیور ہے وہ قتل خطا کا مرتکب مانا جائے گا یا نہیں؟ میں نہیں سمجھتا کہ اس کو قتل خطا کا مرتکب مانا جائے گا، کیونکہ اس کی کوئی غلطی نہیں ہے اس میں۔ واللہ اعلم۔ چلیں جی، اذان کا ٹائم ہو گیا، انشاءاللہ اذان ہوتی ہے، نماز پڑھتے ہیں، اور نماز کے بعد انشاءاللہ دیکھتے ہیں وہ پہلے پروگرام ہوتا ہے تقریب تقسیم انعامات کا یا پہلے درس ہوتا ہے، اس کا بھی فیصلہ بعد میں کرتے ہیں انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک۔